So today we'll discuss the case laws of IBC. आप सभी देखे होंगे ICSI के आपके सप्लीमेंट्री मैट में जो दिसंबर 2020 के लिए है उसमें कई केस लॉज भी दिए हैं जिसको देखकर आप लोग पैनिक हो जा रहे हैं. तो विल डिस्कस दोज केस लॉ टुडे ओनली जो आपके सप्लीमेंट्री मैट में कवर्ड है. इसके अलावा भी वी विल कीप यू अपडेटेड विद द सम मोर केस लॉज एंड द अदर जजमेंट्स ऑफ IBC. उससे पहले हम चलिए जान लेते हैं अ ब्रीफ अबाउट IBC. Hello, welcome everyone. Today in this class, we'll discuss on the case laws relating to IBC, the Insolvency and Bankruptcy Code. We all know the Insolvency and Bankruptcy Code has been envisaged, or you can say has been formed or formulated with the only concept that to revive the company, to rehabilitate the companies suffering from the stressed assets, or you can say the non-performing assets. Indirectly, it is a way to tackle the non-performing assets of the company. तो इसका IBC आने के बाद, if you look at the scenario, there has been a robust development. There has been a robust development in the framework from NCLT for NCLAT. आपको पता होगा कि IBC के फर्स्ट एप्लीकेशंस को हम लोग नेशनल कंपनी लॉ ऑफ ट्रिब्यूनल में ले जाते हैं. देन हम लोग प्रिंसिपल बेंच NCLAT, द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में ले जाते हैं. And then finally, if there is any grievances, we go to the Supreme Court, etc. So now ये तो हुआ hierarchy structure in terms of raising appeals and taking the matter forward. We all know that NCLT में जो IBC code frame हुआ, IBC code जो frame हुआ, that code has been framed with only intent to curb that the company doesn't suffer from liquidation kind of a problem. So the first principle of this IBC is to revive the company. Means first to make sure that they breathe. And if they do not breathe, then yes, obviously we do not have any option. It is just like putting the company on the ventilator for some time, for the time being, and checking whether the company is able to regain. और कंपनी अगर रिगेन कर जाए तो यस इट्स सर्वाइविंग. और यहां पर जो IRP होता है, जो केयर टेकर बन जाता है उस कंपनी का, वो है डॉक्टर. जब उस वेंटिलेटर पे क्लोज मॉनिटरिंग के लिए वो डॉक्टर हो जाता है IRP, राइट, जिसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. वो क्या करता है, जिस कंपनी के लिए अपॉइंट होता है उस कंपनी के सारे ऑपरेशंस को वो एक बार मैनेज करता है, देखता है. और सारे के सारे डिसीजंस मेकर वो होते हैं, जो घर वाले होते हैं वो होते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, बिकॉज दे ओनली नीड टू टेक अ फाइनल डिसीजन, राइट. So that is a committee of creditors, and the committee of creditors advise ki what is the resolution plan, how the remedy will be there, and this resolution plan once accepted, then the company starts reviving. So that is a common framework for the IBC, like common framework for the company going for the CIRP, जिसको बोलते हैं corporate insolvency resolution process. अब क्या हुआ, इतने सारे, मतलब we all know, अब जितने भी एक्ट आते हैं ना वो सिर्फ सेक्शंस आते हैं, उसके बाद उनके रेगुलेशंस रहते हैं, और रेगुलेशंस में वाइडली इंटरप्रिटेट किया रहता है सब चीज को. तो यहां पर भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस केस लॉ व्हाट इज द की टेक अवे. द केस लॉ इज नॉट टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रोविजन. वी विल डिस्कस ओनली द की टेक अवेज, हाउ द इंटरप्रिटेटेड, एंड व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द like view of different courts, or you can say tribunal, in the different matter, and which will help you for your examination point of view. क्योंकि अगर सिमिलर केस स्टडीज आए तो आप आराम से यही वाला लिख सकते हो. कोई जरूरी नहीं हो केस लो का पूरा नाम याद हो, अगर नाम याद हो तो वेरी गुड, नहीं तो आप हेल्ड इन अ लैंडमार्क जजमेंट बोल के स्टार्ट करिए. while writing you can just start writing held in the landmark judgment of so and so. There's nothing required to be captured, nothing required to be feed in your mind, right? So we'll discuss some of the case laws today. So one is related to the controversial power, means which one is the stronger one. So the first case law I will take you through is the Innovative Industries Limited versus ICICI Bank. हुआ क्या, ICICI बैंक ने इनोवेटिव इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में एप्लीकेशन ले आया फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, राइट. अब इसमें क्या हुआ, आपको ब्रीफ दे दूं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे.
देयर वाज अ मास्टर रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट प्रायर टू द आईबीसी, मतलब आईबीसी आने से पहले ही उस कंपनी के लिए एक मास्टर रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट चल रहा था, 2 साल से ऊपर हो गया, चल ही रहा था। फाइनली आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, वंस द कोड वाज देयर इन द 2016 दे हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर द कोड। बोला कि एक काम करो, अब इस कंपनी को आईआरपी मींस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू ले आओ, राइट। जब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू लाया तो इनोवेटिव कंपनी जो है, इनका एक आर्गुमेंट था, बोला हम अनेबल नहीं है ड्यूट को पे करने में। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? बोला महाराष्ट्र रिलीफ एक्ट जो है उसमें रिलीफ दिया गया है, महाराष्ट्र एक्ट में एक रिलीफ दिया गया है फॉर सम काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शंस दैट विल एनेबल द कंपनी टू एंजॉय दैट रिलीफ अंडर द महाराष्ट्र एक्ट, इसीलिए कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही है। एंड देयर व्यू वाज दैट कि दैट सिंस इट इज from the Maharashtra government, Maharashtra Act, the relief which is already there by way of notification, that will prevail. However, the NCLT, the National Company Law Tribunal, took a different view. उन्होंने बोला ना बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, बोला कोड इज कोड, आईबीसी कोड। तो बोला आप सुन रहे हो, तो बोला आईबीसी का जो 238 सेक्शंस है वो बहुत ओवरराइडिंग है, वो क्लियर बोलता है कोई इसके बीच में नहीं आएगा, कोड इज कोड। बोला कोड के बीच में नहीं आ सकता, लेकिन यहां पर हम लोग लकीर के फकीर माने कौन? बोला नहीं नहीं नेकलेट में चले गए। बोला ऐसे कैसे होगा? बोला नेकलेट में आ गए, नेकलेट नहीं, बोला कि नहीं नहीं कोड इज कोड। बोला कोड ही प्रिवेल करेगा, मतलब आईबीसी ही प्रिवेल करेगा ओवर दी महाराष्ट्र एक्ट। बट फिर भी एनसीएलटी ने भी जजमेंट देते हुए क्या होता है ना, आप कैविएट बहुत लगा देते हैं, मतलब राइडर्स। सो उन्होंने जजमेंट तो दिया, बट जजमेंट देते हुए ये बोल दिया कि द कोड एंड महाराष्ट्र एक्ट ऑपरेट इन डिफरेंट फील्ड and therefore they are not repugnant to each other. That means there is no controversy or there is no way they are coming into the way of each other. बोला आपसी तकरार इनका है ही नहीं, ये दोनों अलग अलग है, राइट। एनसीएलटी बोला कि अगर ये लोग तकरार भी कर रहे हैं, आप सुन लीजिए ध्यान से, एनसीएलटी का व्यू था कि अगर ये टकरा भी रहे हैं तो ऑलवेज द कोड विल प्रिवेल, राइट। दैट वाज द व्यू ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। हाउएवर एनसीएलटी वाज ऑफ व्यू कि नहीं भाई, सुन लीजिए ध्यान से सुनिए आप, बोला दोनों अलग अलग फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं और दोनों के बीच में एक तरह से कोई तकरार नहीं आ रहा है, दे आर नॉट रिपग्नेंट टू ईच अदर। बस यहीं का थोड़ा फायदा मिला और ये कोर्ट मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। यहां पर बड़े बड़े लॉयर, दिग्गज लॉयर लड़े, इंडिया के जाने माने लॉयर, कि नहीं दे आर, अगर आप पढ़ो तो वो बताना शुरू कर दिए, पूरा समझाना शुरू कर दिए, द आर्टिकल पढ़ाना शुरू कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, बिकॉज दीज आर द मदर थिंग्स। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स वगैरह, बोले आप कैसे कर सकते हो, दे आर मीन्स कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। तो आप महाराष्ट्र रिलीफ एक्ट में जो रिलीफ, उसका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने पूरा सुना, सुनने के बाद एकदम क्लियर कट डिसीजन दिया दैट पार्लियामेंट्री इनेक्टमेंट विल प्रिवेल ओवर द लिमिटेड नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज कंटेन्ड इन सेक्शन 4। क्योंकि महाराष्ट्र के एक्ट के सेक्शन 4 में भी कुछ ओवरराइडिंग नॉन ऑब्स्टेंट मींस क्लॉज थे। नॉन ऑब्स्टेंट मींस दैट मींस नॉट अलाउइंग अदर लॉ टू ओवरराइड। बट उन सारे लॉ को उन्होंने बोला कि जब पार्लियामेंट में जो कोड इनेबल्ड हुआ है, उन्होंने बोला द आईबीसी इज अ कंसोलिडेटेड कोड। They have given the reference to the various judgment and came to the view that IBC code was framed with the only intention that it should be interrupted free from the other challenges. Had it been like that कि और other law बीच में कुछ कहीं अगर आएंगे तो बोला IBC फिर फ्रेम ही नहीं होता, फिर IBC का दरकार ही क्या था? फिर तो IBC भी अटक जाता, कहीं भी कुछ लॉ में जाके अटका दो, बोलते IBC नहीं होगा। तो बोला IBC was framed with the only concept कि it should act as a consolidated code itself, consolidated framework itself, and based on that a view has emerged कि that IBC will override all other things. So that is what the power is enshrined in the IBC code, and that's the reason that IBC code will prevail over the Maharashtra Act. This was the decision of Supreme Court. सो ये लैंडमार्क जजमेंट याद रखिएगा इनोवेटिव और आईसीआईसीआई बैंक का, राइट। कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी छोटी सी बात कि आईबीसी कोड जिंदाबाद, राइट। नेक्स्ट कोर्स इज अ प्रिसीजन फास्टनर्स लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉय
प्रोविडेंट फंड लिमिटेड। ये भी एक इंटरेस्टिंग केस लॉ है। मींस जस्ट कम टू दिस, इसमें हुआ क्या दैट मुंबई में केस रेफर हुआ। इस केस में क्या हुआ, प्रिसीजनर फास्टर्स के कुछ ड्यू थे, वर्कमैन के ड्यू वगैरह पड़े थे अमाउंट। तो उन्होंने बोला कि वर्कमैन अमाउंट का जो ड्यू पड़ा फॉर द प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एटसेट्रा, अगर आपको याद हो तो सेक्शन 53 ऑफ आईबीसी में देयर इज अ फ्रेमवर्क फॉर द लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स, मींस प्रायोरिटी फ्रेमवर्क की कैसे कैसे होगा। एंड सिमिलरली अंडर sections in the IBC code itself 36, it says that what are the list that will be considered as the assets for the purpose of priority distribution, right? तो वो बोले उस फंड में पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, वेदर दिस विल फॉर्म पार्ट और नॉट, यही डिबेट इस सेक्शंस में आके हुआ। तो पहले आपके रेफरेंस के लिए बोल दूं कि द एनसीएलटी बेंच ऑफ मुंबई एंड दिल्ली, और बहुत सारी एनसीएलटी का भी ऑर्डर है, बहुत सारे पहले भी, they held that the amount dues and payable to any workman or employee from the provident fund, gratuity fund, pension fund are the assets of the workman, and hence they cannot be formed part of the liquidation assets. Similar view was there by the Mumbai bench again in the order dated September 2018. और उन्होंने clear cut कहा, right, these are the assets of the workman, वेदर मेंटेन इन द सेपरेट अकाउंट और नॉट। यहां तक कि ये भी बोल दिया कि वो अगर आप सेपरेट अकाउंट में अभी जमा भी नहीं हुआ ना, तो जो ड्यू वगैरह है वो ऑलरेडी एसेट हो गया वर्कमैन का। सो दीज आर द एसेट्स ऑफ द वर्कमैन, राइट? देयर इज नो व्यू, देयर इज नो लाइक अ सेकंड थॉट दैट इट विल बी एवर ट्रीटेड एज अ एसेट्स ऑफ द कंपनी। एंड सेकेंडली दे सेड कि जो आप ईपीएफओ एक्ट, ईपीएफ एक्ट को बार बार ले रहे हो राइट में, बोला ये जो लॉ है ईपीएफओ, इट इज जस्ट अ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन, मतलब ये ऐसा लेजिस्लेशन जो प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कमैन के लिए बना है, एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। सो फ्रॉम दैट व्यू दे हैव कंक्लूडेड कि दैट सम ड्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्कमैन ड्यू। बोला अगर प्रोविडेंट फंड वगैरह का ड्यू है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट, and therefore it has to be excluded from the liquidation state। जो बांटने के लिए अवेलेबल रहता है उसमें से नहीं आएगा, राइट? तो ये जो ड्यू वगैरह का पार्ट है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ये इसका पार्ट नहीं होगा लिक्विडेशन एसेट्स का। The NCLT Mumbai bench reiterated this decision of various other benches, and the same view was taken in the Alchemist एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। उसमें भी सेम केसेस, सेम व्यू हुआ एनसीएलटी का। तो आप लिख के रखिए अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। दैट ऑल्सो सेड दैट ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ 238, जो अभी भी हम लोग बार बार जिक्र कर रहे थे ना, सेक्शन 238 विल प्रिवेल, राइट, ओवर द एनी अदर। So that means here also you see the power of the court. So liquidation asset state में अगर आप बात करोगे तो कभी भी ड्यू फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड ग्रेचुइटी फंड का बात नहीं करोगे। These are the workmen assets, right? Next is some decision relating to the timelines. Timelines in the sense आप अगर NCLT पढ़े होंगे तो बहुत सी जगह बहुत सारी टाइमलाइन दी है। से फॉर एग्जांपल दे से यू हैव टू फाइल इन 14 days, राइट? यू हैव टू फाइल इन 7 days। ऐसी ऐसी टाइमलाइन अगर आप लोगों को पड़ी पड़ी धुंधली धुंधली याद आ रही होगी, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ही फाइल कर रहे हो सेक्शन 9 वगैरह में, तो आप एडमिशन हो जाना चाहिए 14 days में, राइट? अगर कोई डिफेक्ट नोट होता है तो आपको डिफेक्ट को रेटिफाई करने के लिए बोलता है एनसीएलटी, कितने दिन में? 7 days में। धुला धुला याद आ रहा है ऐसा? So there are different view emerging from the different case law, and कई जगह पर लोग बोलते हैं ये टाइमलाइन जो है ना मैंडेटरी है, कई लोग जो बोलते हैं नहीं नहीं ये डिस्क्रिशनरी है, डायरेक्शनरी है, समझ गए? बट हम लोग बहुत सारे केस लोग अगर याद आ रहे बचपन में, मतलब आई मीन टू से कुछ प्रीवियस वीडियोस में और लाइव क्लासेस में आप लोगों ने सुना, जैसे हम लोग बात करते हैं कि दीज टाइमलाइंस आर डायरेक्शनरी, राइट, मींस नॉट मैंडेटरी। इनफैक्ट अगर आप बात करो सेक्शन 4 में जो ओवरऑल टाइमलाइन की बात करता है दैट इट हैज टू बी रिजॉल्व, अभी जो हम लोग बात कर लेंगे 330 days वाला जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसका जो सेक्शन है वो क्लियरली एनविसाइज किया कि इट हैज टू बी रिजॉल्व इन अ पीरियड ऑफ 330 days, अदरवाइज लिक्विडेशन। इनफैक्ट उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के व्यू है इन डिफरेंट केसेस विच विल डील टुडे, एसआर स्टील वगैरह, उसमें क्लियर कट बोला गया कि नहीं, टाइमलाइन को आप मैंडेटरी नहीं कर सकते, अदरवाइज
you will lose the parameter or you will lose the first prime principle of setting down the insolvency cases. So I will discuss one of the cases as Surendra Trading Company versus Juggilal Kamlapat Jute Mill Company Limited. सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस जुग्गीलाल कमलापत जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड. ये केस लॉ आपको बता दो कि जो भी केस लॉ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री मैट. जो आपका इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 20 एग्जाम के लिए आपको सप्लीमेंट्री मैट दिया है, उससे रिलेटेड केस लॉज ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट, फॉर योर कन्वीनियंस, सो दैट यू विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द केस लॉ. सो सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी में क्या हुआ, जस्ट सी द एनसीएलटी इलाहाबाद बेंच में केस आया, केस फाइल हो गया बाय द क्रेडिटर्स, राइट. रजिस्ट्री ने कुछ डिफेक्ट निकाले और डिफेक्ट के लिए बाद वो एप्लीकेशन सबमिट होते होते करीबन 28 फरवरी 17 को कंप्लीट हुआ. मोर देन 7 डेज, इट टुक अराउंड 13-14 डेज. तब जाके ये एप्लीकेशन सबमिट हुआ. एप्लीकेशन जब सबमिट हुआ तो कॉर्पोरेट डेटर एकदम रेडी बैठे थे, मुंह बना के उन्होंने तुरंत के तुरंत वो जो एडमिशन किया इलाहाबाद बेंच ने उसको चैलेंज कर दिया. कहां पर, नेकलेट में. बोले ना एनसीएलटी से दुखी हो तो कहां जाओगे, एनसीएलटी में. तो वो तुरंत के तुरंत वहां चले गए मुंह उठा के. बोले सुनिए सुनिए सुनिए, बोले आप जो बात देख रहे हो एनसीएलटी ने उनको 7 दिन दिया था रेक्टिफाई करने का, उन लोगों ने नहीं दिया. उसके बाद सबमिट किया रेक्टिफाई करके और एनसीएलटी ने एडमिट कर लिया. बोला ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया, कर ही नहीं सकता. तो एनसीएलटी के पास चले गए. एनसीएलटी का अलग ही व्यू था. वो बोला सुनिए, बोला जो 14 डेज टाइमलाइन जो हमारे पास है एनसीएलटी के पास, वो तो डायरेक्शनरी है. क्योंकि अगर याद हो फर्स्ट केस इटसेल्फ इन द इंसॉल्वेंसी एनसीएलटी में 14 डेज के बाद ही एडमिट हुआ था. क्योंकि वहां पर सबका व्यू है जुडिशियल बॉडीज का कि ये जो 14 डेज है ये डिस्क्रिशनरी है, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए एडमिशन लेने में या रिजेक्ट करने में. तो बोला एनसीएलटी के लिए जो टाइम पीरियड होता है 14 दिन, बोला वो तो डायरेक्टरी है नेचर, मतलब सोचेगा करना है कि नहीं करना है, मैंडेटरी नहीं है. बोला वो डायरेक्टरी है. बट बोला 7 डेज होता है ना, वो मैंडेटरी है. बड़ा सुन के बड़ा अजीब लगा. बोला ये कैसे हो जाएगा. बोला एक जगह तो बोला आप 14 होगा और एक जगह बोला 7 होगा. दोनों टाइमलाइन में ऊपर और नीचे दोनों में 2 व्यू. बोला ऊपर वाला डायरेक्टरी और नीचे वाला मैंडेटरी. मतलब आप लोग के लिए मैंडेटरी होता है, हम लोग के लिए डायरेक्टरी होता है. बोला जाओ जाओ. एनसीएलटी बोला, राइट. तो एनसीएलटी बोला मैंडेटरी होता है. बट अब कैसे ये क्या जाए, एनसीएलटी जब ये बोला तो देन कॉर्पोरेट डेटर से वो लोग, कॉर्पोरेट डेटर अब थोड़ा खुश, बट अब वो लोग नाराज गेटर्स. मैटर चला गया कहां, सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने बोला वाह वाह वाह, बोला बहुत अच्छे कि आप लोग टाइम पर आ गए. बोला ये कैसा व्यू ले लिया, एक ही जजमेंट में, एक ही पैरा में, एक ही सेक्शन में यू आर गोइंग बाय द डिफरेंट इंटेंट कि एक मैंडेटरी और एक डायरेक्शनरी मींस डायरेक्टरी नेचर है. बोला ऐसा कैसे हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना 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 ना. सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया. बोला ये डायरेक्टरी नेचर है. अब सब कुछ बोला अरे वाह वाह वाह. लेकिन बस सुन लो, सुप्रीम कोर्ट ने कैविएट लगा दिया, प्रोवाइडेड, दिख रहा है ऐसा. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कैविएट लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने कैविएट लगा दिया कि अगर आप 7 डेज के बाद दे रहे हो तो प्रोवाइड द रीजन फॉर सबमिशन बियॉन्ड 7 डेज. अगर वो रीजन जस्टिफाइड लगा तभी एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं. क्योंकि अदरवाइज अगर डायरेक्टरी लिख देगा ना, सेम सुप्रीम कोर्ट अगर जजमेंट देता कि डायरेक्टरी है तो लोग 7 दिन की जगह 700 दिन में रिप्लाई देते उसका. समझ गए आप. हम लोग तो तैयार रहते हैं, हम लोग 7 दिन की रिप्लाई कितने दिन में देते हैं, 700 दिन में. तो सुप्रीम कोर्ट ने कैविएट लगा दिया. बोला रुक जाओ, सुनो ध्यान से. बोला है तो डायरेक्टरी, बट देन अगर 7 दिन के बाद देते हो तो नेचर बताना होगा, करेक्ट, कि क्यों डिले हुआ, क्या रीजन था कि नहीं दे पाए. Otherwise, it will not be accepted. So that judgment has come from the Supreme Court. Again in this matter, Juggilal Kamlapat Jute Mills, Surendra Trading Company का, it's a Supreme Court verdict. और मैं बोलूंगा थोड़े सुप्रीम कोर्ट वाले वर्डिक्ट को प्लीज थोड़ा सा फोकस्ड होकर पढ़िएगा. कुछ जजमेंट आया आपके रोल एंड फंक्शंस ऑफ आरपी को लेके. आरपी कौन हुआ सर, हम लोग तो आरपी जानते हैं, आपका नाम रवि वर्मा. नहीं, आरपी होता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. इसको इतना सर्कल करो कि आरपी नहीं दिखे, राइट.
रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इससे रिलेटेड कुछ कुछ जजमेंट्स आए, वो भी बहुत लैंडमार्क थे। लाइक एक जजमेंट एनसीएलटी चेन्नई का है इन द मैटर ऑफ सुभाश्री रियलिटी वर्सेस एन सुब्रमण्यन। दैट्स द एनसीएलटी चेन्नई का वर्जन है। इसमें क्या है, आपके आरपी का पावर बताया, मींस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का क्या पावर हो सकता है। पर देखिए क्या हुआ, आप सुनोगे ना, जैसे ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड हो जाता है, राइट। पूरा का पूरा बोर्ड सस्पेंड हो जाता है, और बोर्ड का चार्ज कौन ले लेता है, पूरा आरपी, राइट। बोला बोर्ड सस्पेंड होता है, डायरेक्टर नहीं। बस इतना सही बात था। वही बात को एनसीएलटी ने बोला, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दैट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन एंड असिस्ट आरपी। देखिए एकदम क्लियर लिखा, एकदम छोटी सी बात है, कुछ नहीं। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने उस डिसीजन को जब सस्पेंड किया था एनसीएलटी चेन्नई ने बोर्ड को, उस पर अपना क्लैरिटी दिया। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने बोला डायरेक्टर सस्पेंड नहीं हुआ है, बोर्ड सस्पेंड हो गया है। डायरेक्टर जो है, एम्प्लॉइज है, वो अपना ड्यूटी फुल्ली डिस्चार्ज करेंगे। डू नॉट ओनली डिस्चार्ज, दे विल असिस्ट। एग्जाम में आ जाएगा एक क्वेश्चन, केस स्टडी, पूरा का पूरा बोर्ड सस्पेंड हो गया विद द मॉरेटोरियम। नाउ द आरपी हैज रिक्वेस्टेड मिस्टर ए डायरेक्टर टू असिस्ट हिम। मिस्टर ए हैज रिटन अ लेटर, सेंटिमेंटल लेटर, out of his emotion to the RP, that had I been the director there, I would have helped you. Now since the moratorium is there, board is suspended, even I have lost my job, I am so sorry, I can't help you. आप लोग पूरे के पूरे क्लास गुमराह हो जाओगे कि हाँ हाँ, कई लोग इसमें और गंदा गंदा लिख के आ जाएंगे, करना ही नहीं चाहिए, डायरेक्टर इतना अच्छा आदमी था, देखो कितना बढ़िया रिप्लाई कर रहा है, कितने बढ़िया से लिखा है सर, सब बह जाओगे। भइएगा मत भाव में, क्योंकि वहीं पर आपको तुरंत जजमेंट याद आ जाना चाहिए कि एनसीएलटी चेन्नई बेंच का एक जजमेंट ऐसा सुभाश्री और एन सुब्रमण्यम में कि दैट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन एंड असिस्ट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, द बोर्ड इज सस्पेंडेड, राइट। एंड इनफैक्ट वो तो ये बोलता है कि जिन जिन इंप्लॉय के पास साइनिंग करने के पावर थे वो भी रहते हैं। पावर जो साइन करने का वो सस्पेंड नहीं होता है। Only thing is that they need to inform the RP, they need to take a consent from the RP, but their power to sign and check everything is with the person, particular employee or the officer. That power doesn't get lost. So इतनी छोटी सी बात इन लोगों ने इस केस लॉ के थ्रू बता दी। NCLAT का जजमेंट, राइट, एपेलेट ट्रिब्यूनल का जजमेंट। समझ में आया आप लोग को भी समझ में आ गया होगी सर, हाँ सर ये तो बहुत इजी लगा सर, राइट। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जजमेंट्स ऑन द रूल ऑफ आरपीज। आरपी मींस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। एक ऐसा ही जजमेंट है विजय कुमार जैन वर्सेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ये एक एनसीएलटी मुंबई का केस है। हुआ क्या, ये बैंक की तरफ से जब फाइल हुआ तो डायरेक्टर जो कंपनी का था वो क्या किया, एनसीएलटी मुंबई बेंच में अपील किया। बोला मेरे को सीओसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है और सारे डॉक्यूमेंट चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, सेक्शन 24 ऑफ द आईबीसी मींस सेक्शन 24 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बताता है कि आप किसी भी मीटिंग का नोटिस, मतलब सीओसी की हर मीटिंग का नोटिस किसको दोगे, आप सीओसी की मीटिंग का नोटिस दोगे आप क्रेडिटर्स को, जो ऑब्वियसली कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उसके सारे मेंबर्स को, आप डायरेक्टर्स को भी दोगे। तो दैट राइट इज ऑलवेज देयर। सो सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी एनसीएलटी के पास जब मैटर गया मुंबई बेंच, तो एनसीएलटी बोला दैट डायरेक्टर्स हैव अ राइट टू अटेंड। आ जाओ, राइट मना नहीं है तो लिखा ही है सेक्शन 24 में, बट आपको रेजोल्यूशन प्लान वगैरह नहीं मिलेगा। मैटर गया एनसीएलटी में, मतलब पता है ना, एनसीएलटी में तो खुश होते नहीं हम लोग मुंबई बेंच में, फिर चले गए एनसीएलटी में। एनसीएलटी में गया तो उसका ही वर्डिक्ट सेम, बोला हाँ सेम, बोला आप मीटिंग अटेंड करो, आओ ना, बट ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको नहीं मिल सकते, रेजोल्यूशन प्लान वगैरह, बिकॉज वो क्रेडिटर्स ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग है। डायरेक्टर भी बोले ऐसा थोड़ी ना होगा। बोला अभी तो हम सुने हैं, बोला एनसीएलटी के बाद, बोला हमको बता रहे थे स्टूडेंट जो अमित सर की क्लास लिए कि यू कैन अप्रोच दी सुप्रीम कोर्ट एज वेल। तो देन दे सेड कि ओके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, तो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बस बोला आओ, हम लोग तो फैसला सुनाने के लिए बैठे थे, बुलाओ।
बोला दैट दे सेज दैट दो द डायरेक्टर्स आर नॉट द मेंबर ऑफ सीओसी बट दे हैव अ राइट टू अटेंड एवरी मीटिंग। बोला वेरी गुड। बोला क्यों? बोला लोग अटेंड करेगा ही, वो लोग का ये पार है। सुप्रीम कोर्ट के ही समय, उसी समय अक्टूबर 2018 में अमेंडमेंट भी लाया गया इसी वर्डिक्ट से, रेगुलेशन 21 सीआरपी जो रेगुलेशन है उसमें अमेंडमेंट लाया गया। उसने बोला इफ यू आर अ डायरेक्टर एंड इफ यू आर नॉट हैविंग द डॉक्यूमेंट्स, अब उसमें इंक्लूडिंग रेजोल्यूशन प्लान भी बोलता है, तो बोला जब डॉक्यूमेंट्स है उसको वर्ड वाइडली इंटरप्रिटेट करिए। बोला डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट मींस रेजोल्यूशन प्लान एज वेल। बोला अदरवाइज आप मीटिंग के इनवाइटी होके क्या करोगे इफ यू डोंट हैव द पेपर। प्लस उसने बोला कि द डायरेक्टर्स मे हेल्प द असिस्ट और मे असिस्ट द resolution professional committee in taking some decision because they are knowing the in and outs. आप next slide देखोगे, they are well averse of the affairs of the company, so they were well averse with the functions. They can assist the COC कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, resolution plan में आप कंपनी कितनी सर्वाइव करेगी किसके हाथ में दो, राइट? बोला ये सब दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे जब जजमेंट देता है तो इतना भी ज्यादा जाती नहीं करता। उसने बोला जो एनसीएलटी और एनसीएलटी डर रहे थे कि कॉन्फिडेंशियलिटी डायरेक्टर रेजोल्यूशन प्लान को लीक कर देगा, तो बोला कोई बात नहीं, बोला डायरेक्टर से एक अंडरटेकिंग ले लो। बोला अंडरटेकिंग ले लो कि वो रेजोल्यूशन प्लान को कहीं लीक नहीं करेगा। वंस यू हैव दैट अंडरटेकिंग देन देयर इज नथिंग, मींस यू डोंट नीड टू हैव अ सेकंड थॉट, राइट? So that is what the judgment held in the case of Vijay Kumar Jain and Standard Chartered Bank. This matter again has gone to the Supreme Court, and Supreme Court decided कि directors can have the resolution plan. And अब तो आपके amended होके, अगर आप देखोगे ये amendment होके आपके regulation 21 में cover भी है। अब तो लिखा हुआ भी, अब आप अमेंडमेंट में पढ़ोगे अक्टूबर 2018 ऑनवर्ड्स, उस अमेंडमेंट में लिखा हुआ है कि दे कैन हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द रेजोल्यूशन प्लान, राइट? सो दैट इज व्हाट कम इन द विजय कुमार जैन स्टैंडर्ड चार्टर्ड। नेक्स्ट इज द केस रिलेटिंग टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस तिरुपति जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सर ये क्या है? ये भी एक केस है। इस केस में क्या हुआ? अगेन यहां पर रूल डिसाइड हुआ। यहां पर क्या हुआ? आरपी को ही हटा दिया सर, एकदम हटा दिया। हाँ जी, आरपी को एकदम हटा दिया। बोला आप रहने दो। सर क्यों सर, ऐसा क्यों? बोला आरपी, अगर आपको याद हो रेगुलेशन 30, रेगुलेशन बोल रहा हूं, सेक्शन 30 आप लोग को याद हो तो सेक्शन 30 जो है ना वो डील करता है, ये एनसीएलटी वैसे कोलकाता बेंच का ही मैटर है तो आप लोग को और भी अच्छा लगेगा। दिस इज द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट वर्सेस तिरुपति जूट। इसमें क्या हुआ? बोला कि सर जो प्लान गया ना सेक्शन 30 में, सेक्शन 30 में रिक्वायरमेंट आपको पता है ना कि रेजोल्यूशन प्लान शुड प्रोवाइड फॉर द पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द सेक्शंस ऑफ द कोड, रेजोल्यूशन प्लान शुड कंप्लाई विद ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, ये सब एक सारी लाइन लिखे हुए टू ई है, राइट? और उसी में सारे सब डाले हुए सेक्शंस वगैरह, प्रोवाइजो क्लॉज वगैरह सब कुछ। ये कंफर्मेशन किसको देना पड़ता है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, जब वो एनसीएलटी में प्लान सबमिट करता है कि यस ये इन कॉन्फॉर्मिटी है विद द सेक्शन 30, राइट? ये कोड में लिखना पड़ता है। क्या हुआ? जो प्लान गया वो प्लान प्रोवाइड कर रहा था फर्स्ट बात तो कि बोला इसका सारा का सारा क्लेम हटा दो, राइट? बोला एग्जेम्पशन, इसका टैक्स वगैरह सब कुछ कर दो, वो सब रेजोल्यूशन प्लान में लिखा हुआ था। जो कि कुछ कुछ वहां पर जो एग्जेम्पशंस लिखे थे विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू द लॉ, and this has not been brought in notice by the RP. RP ने नोटिस में नहीं लाया, right? He didn't provide the correct advice. तो NCLT ने क्या व्यू लिया? बोला एक तो प्लान को पहले रिजेक्ट करो। They rejected the plan and ordered the liquidation. तो एक जजमेंट आया कि NCLT के पास पावर है रिजेक्ट करने का। सर वो तो एक्ट में भी लिखा है कि कोड में भी कि वेदर दे कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, राइट? वो कोड में भी लिखा है एंड दे कैन ऑल्सो टेक, राइट? सेकेंड उन्होंने बोला सिंस रेजोल्यूशन प्लान सेक्शन 32 के अकॉर्डेंस में नहीं था, मतलब सारे कंप्लायंसेस वगैरह नहीं थे, तो दैट मींस आरपी हैज नॉट प्रोवाइडेड करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड अब जो लिक्विडेटर होगा वो आरपी को मत बनाओ, राइट? मतलब आरपी शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर फॉर दिस कंपनी। आरपी को लिक्विडेटर नहीं बनाया जाए, करेक्ट?
आरपी को लिक्विडेटर पोजीशन से हटा दिया। नहीं तो अगर आप पढ़ेंगे तो सेक्शन में लिखा हुआ है कि एट द टाइम व्हेन दे टेक अ कॉल टू मींस मेक द कंपनी गो फॉर लिक्विडेशन, देन the same person IP is appointed as a liquidator unless he is replaced. Unless he is replaced, he is the one who is appointed as a liquidator. तो वो चीज नहीं, वो उन्होंने सीधा रिमूव ही कर दिया, तो एनसीएलटी के पास पावर है रिमूवल का, ये जजमेंट मिला। करेक्ट? सो दैट वाज इन दिस केस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक वर्सेस दिस तिरुपति जूट इंडस्ट्रीज, राइट? सिमिलर केस एक इंटरेस्टिंग है, देवेंद्र पदमचंद जैन वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये हैदराबाद से रिलेटेड है। देवेंद्र पदमचंद बैंक वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। इसमें क्या हुआ ना, इसमें द मैटर हैज गॉन थोड़ा सीवियर, लाइक एनसीएलटी हैदराबाद जो था उसने रिमूव कर दिया आरपी को, वैसे ही जैसा अभी बोला ना, ही ऑल्सो हैज रिमूव्ड द आरपी। बोला क्यों? बोला आरपी जो है वो एनसीएलटी को असिस्ट नहीं करता, जो कि उसका मेन फंक्शन था कि एनसीएलटी को असिस्ट करे। प्लस बोला आरपी ने अपने रेजोल्यूशन प्लान में ये नहीं लिखा कि 32 का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, राइट? ये लिख के क्या सबमिट किया उसने, मींस इट वाज अ व्यू ऑफ एपेलेट ट्राइब्यूनल। व्हाट आई एम सेइंग कि दैट एनसीएलटी ने ये सब किया, एनसीएलटी का व्यू था कि इसने जो किया वो सही है। बोला क्यों? बोला रिमूव कर सकता है, बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब चैलेंज इस बात का हुआ कि नहीं कैसे कर सकता है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये जो आरपी थे ये भाई साहब थे बीएनआर इंफ्रास्ट्रक्चर के आरपी। बोला आप ऐसे रिमूव कैसे कर सकते हो किसी को भी, कि दैट बिना अपॉर्चुनिटी के, जब सेक्शंस में लिखा है कि यस यू कैन, द सेम पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर, व्हाई नॉट दिस पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर? अगर रिप्लेस करना होगा रिप्लेस होगा। दूसरा, आरपी ने चैलेंज किया, आरपी ने बोला अगर मेरा प्लान, मैंने ये नहीं लिखा 32 का कंफर्मेशन है, तो ये प्लान आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए था। व्हाई यू कंटिन्यूड विद द प्लान? आपको एनसीएलटी को उसी समय रिजेक्ट कर देना चाहिए था। सीएससी को मेरे को रिप्लेस कर देना चाहिए था अगर हम आपको असिस्ट नहीं कर रहा था, तो आप हमको कैसे रिमूव कर सकते हैं? गया चला गया एनसीएलटी में। एनसीएलटी बोला एनसीएलटी इज राइट। बोला आप उसके पास पूरा पावर आपको रिमूव करने का। बोला अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगे कि आप असिस्ट नहीं कर रहे हो, तो देन डोंट गो बाय द रिप्लेसमेंट क्लॉज, डोंट गो बाय द क्लॉज दैट वो प्लान एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। डोंट थिंक दैट रिजेक्शन इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर रिमूवल ऑफ आरपी। दैट शुड नॉट बी द प्राइमरी कंडीशन। बोला दैट इज ओपन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी as long as it's a jurisdiction of adjudicating authority to take this call, and they are having all the power to remove the RP, provided it is on the ground that yes there was certain non compliance. So आप देखिए दोनों में, ये पदमचंद जैन में भी आरपी ने हटा दिया और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक में भी आरपी को हटा दिया। तो दिस पावर इज देयर विद द एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। द नेक्स्ट केस इज अ मैक्वेरी बैंक लिमिटेड वर्सेस शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये थोड़ा सा केस लॉ अगर आप पढ़ेंगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। अगर आपको इस केस लॉ से पहले बता दो कि आपको पता होगा सेक्शन 9 जो आपका है कोड में, उसमें बोलता है कि आप एक जब फाइनेंशियल क्रेडिटर हो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप एक सर्टिफिकेट दोगे, राइट, कि ये हमारा ये डिफॉल्ट हुआ है, एंड दैट सर्टिफिकेट विल बी एक्टिंग एज अ योर प्रूफ दैट देयर इज अ डिफॉल्ट। नाउ ये मैक्वेरी बैंक जो है ये है फॉरेन बैंक में, इट डजंट कवर अंडर द फॉरेन इंस्टीट्यूशन। तो क्या हुआ, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, एप्लीकेशन रिजेक्टेड। बोला ये तो पहला ही बात है, नॉन कंप्लायंस हो रहा है। बोला कि सर्टिफिकेट है ही नहीं। बोला सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो नहीं है तो रिजेक्ट है। सेकेंड वो बोला ऑलरेडी एक डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहा है पहले से ही, कंपनीज एक्ट जब 1956 था ना, उसी समय से वो शिल्पी केबल के साथ एक डिस्प्यूट पहले से ही चल रहा है। तो बोला एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट भी है। बट बोला ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट तो सेकंड मैटर डिस्कस करेंगे। पहला बात ये आता है कि जो फॉरेन सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी मींस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट चाहिए, वो मैंडेटरी है कि नहीं या फिर डायरेक्टरी है, ये बहुत जरूरी है चेक करना, स्पेशली जब फॉरेन ऑपरेशनल क्रेडिटर लोग इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये तो फॉरेन ऑपरेटर्स के साथ था।
तो वहां पर उन केसेस में वेदर दिस सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी और डायरेक्टरी, दिस नीड्स टू बी एग्जामिन्ड। सेकेंड, इस केस में जो नोटिस था वो लॉयर से था, उसको भी चैलेंज कर दी, बोले क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर के बिहाफ में लॉयर नोटिस दे सकता है? अब नॉर्मल वाला जो है ना लॉयर नोटिस दे सकता है, वो तो मेरे को पता है, पूरा क्लास आप लोग आंसर समझ गया होगा कि दे सकता है। बट अब आ जाए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे, तो देन वर्डिक्ट हैज कम। वर्डिक्ट क्या बोला? वर्डिक्ट बोला फर्स्ट तो आप एक जो सेक्शन है 93C, डोंट रीड इट एज प्योरली एज अ सेक्शन ओनली, रीड इट विद द रूल। और बोला आपके जो एप्लीकेशन रूल्स हैं इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी के, रूल 5 और 6, उसके साथ पढ़िए। और बोला वहां साथ पढ़ने से इट्स वेरी क्लियर कि उसमें लिखा हुआ है कि देन प्रूफ और सच अदर में बी एज में बी सबमिटेड। तो बोला दैट लैंग्वेज इटसेल्फ इज क्लियर टू गिव अ क्लियर कट क्लू दैट सेक्शन 93C जो फाइनेंशियल सर्टिफिकेट बोलता है इट्स नॉट मैंडेटरी। तो सुप्रीम कोर्ट बोला डोंट डू द कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन, कि आप सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ के इंटरप्रिटेशन मत करिए, यू हैव टू फाइंड द रियल इंटेंट कि व्हाट एग्जैक्टली इज पॉइंटेड आउट देयर, सो डू इट टुगेदर। सेकेंड उसने बोला सर्टिफिकेट जो होती है ना, बोला ये तो सिर्फ एक कंफर्मेटरी एविडेंस है, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी अदर थिंग। बोला ये एक सिर्फ कंफर्मेटरी एविडेंस है कि हाँ मेरे को और सेकेंड प्रूफ हो गया। तो बोला आप इसको प्री रिक्विजिट नहीं बना सकते किसी एप्लीकेशन का, राइट। थर्ड उसने बोला आप आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स अबाउट द राइट टू इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट, बोला आप उस चीज को आप वायलेट नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकते कि फॉरेन क्रेडिटर्स में वो लोग कैसे ऑब्टेन करेगा, दैट मींस यू मीन टू से वो लोग अप्लाई नहीं कर सकता, राइट। तो ये सारे जजमेंट, ये सारे व्यू देते हुए इट वाज हेल्ड दैट एप्लीकेशन इज बोनाफाइड एंड दिस सर्टिफिकेट इज जस्ट मियरली अ कंफर्मेटरी एविडेंस, सो फाइनेंशियल सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी, अगेन रिपीटिंग इट्स नॉट मैंडेटरी। और बोला रही बात लॉयर की नोटिस देने की, तो उसने सेक्शन 30 को कोट कर दिया एडवोकेट एक्ट को, बोला वो एक बहुत वाइडर है एंड दिस इंक्लूड्स ऑल प्रिपरेटरी स्टेप्स टेकन बाय द लॉयर इंक्लूडिंग द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो बोला अगर आप उस लॉ को पढ़ लें तो बोला इट्स वेरी क्लियर दैट लॉयर कैन गिव द नोटिस टू द कंपनी, राइट। तो अब इसके बाद कोई सेकेंड रूम ऑफ थॉट रह ही नहीं रह गया इन द वर्डिक्ट। इट्स वेरी क्लियर कि सर्टिफिकेट वगैरह फाइनेंशियल सर्टिफिकेट इज मियरली अ कॉन्फर्मेटरी एविडेंस, नथिंग एल्स, नथिंग बियॉन्ड दैट। एग्जाम में पूछ लेगा ऐसा ऐसा हुआ, एक फॉरेन ऑपरेशनल क्रेडिटर है, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट नहीं दिया, सेक्शन 93 से ही कंप्लायंस नहीं किया, केस एडमिट नहीं हुआ, राइट डाउन योर कमेंट। आप लोग बोलोगे हाँ नहीं लो, कैसे लेगा, डॉक्यूमेंट हमेशा ही आधा देता है, देना चाहिए था सर्टिफिकेट, क्यों नहीं दिया, राइट। ये पूरा गांव आप लोग भर भर के लिख दोगे, तो क्यों नहीं दिया जब ये लिखोगे तो गलत हो जाओगे। बल्कि केस लॉ रेफर करिए मैक्रो बैंक वाला एंड आंसर करिए कि इट वाज हेल्ड देयर दैट इट इज जस्ट अ कंफर्मेटरी एविडेंस and the code cannot be discriminatory, so hence this application should be admitted, right। ऐसा कुछ जवाब बना के लिखिए। नेक्स्ट इज अ निखिल मेहता एंड सन्स वर्सेस AMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ ना, इस केस में बेसिकली आप रियल एस्टेट वाला जो सुनते हो ना उसी टाइप की कहानी है, राइट। हुआ क्या, फाइनेंशियल क्रेडिटर का डेफिनेशन जो है ना वो इनका इंटरप्रिटेशन चला गया, क्या होगा। इन दोनों में जो एप्लीकेंट्स और एप्लीकेंट्स है यहां पर इन निखिल चंद में और AMR में एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग था, जहां पर AMR बोला कि एप्लीकेंट जो है मींस मेहता जी वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे उनसे, और तब तक जो है प्रॉपर्टी जब तक आपके डिलीवरी में नहीं आ जाए पोजीशन में, एक मंथली एश्योर्ड रिटर्न उनको मिलते रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ MOU। तो बोला इन्वेस्टमेंट वाली तो एक अलग चीज है, इनको एक एश्योर्ड रिटर्न का कमिटमेंट मिला। निखिल भाई साहब ने बोला कि सुनिए सेबी का एक ऑर्डर है जहां पर बोला है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो जहां पर एश्योर्ड रिटर्न का बात हो इज नॉट अ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन एंड रादर वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में आता है। तो बोला मेरा पूरा राइट है कि हम इंसॉल्वेंसी के अंदर एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर एडमिट हो, राइट। उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट किया। उन्होंने बोला कि यही नहीं, अगर आप फाइनेंशियल डेट का डेफिनेशन देखो तो हम वहां भी कवर्ड होते हैं, बिकॉज
इट वॉज अ एश्योर्ड रिटर्न, देयर वॉज अ कमिटमेंट। अब क्या हुआ, फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन का फ्लो चालू हुआ। उसमें बोलता है फाइनेंशियल डेट मींस अ डेट which is along with the interest and that was disbursed against time value of money, that is inflow and outflow must be distanced by the time value of money वही होता ना, आज आप करो 4 महीने बाद कितना होना चाहिए उतना रिटर्न आए, राइट। एंड अगर वो उतना नहीं हो रहा हो तो उसका कंपनसेशन, यही तो बोलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। एनसीएलटी ने क्या बोला, जो एनसीएलटी बेंच था वो बोला देखिए ये एश्योर्ड रिटर्न का बात जरूर है, बट एश्योर्ड रिटर्न डजंट मीन कि वो आपको कंपनसेट करने का बात किया उतना अमाउंट से। तो बोला इन आवर व्यू, इन आवर लिमिटेड व्यू, इट इज मियरली अ सिंपल सेल ट्रांजेक्शन। एंड एक जितनी सी बात छोटी सी कि ये आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सेक्शन 5 में कवर हो जाओगे फाइनेंशियल डेट में। समझ रहे हो आप एनसीएलटी का व्यू। उसने बोला हम लोगों ने सुन लिया, जान लिया और पहचान लिया, हमारे हिसाब से टाइम वैल्यू ऑफ मनी एसेंस है कोई भी फाइनेंशियल डेट को देखने के लिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस इनफ्लो और आउटफ्लो, जब आपका डिस्टेंस हो रहा हो टाइम से और उस टाइम के बाद आपको इतनी वैल्यू ना मिले तो आपको कंपनसेट किया जाए। बोला आपने तो इन्वेस्टमेंट किया प्रॉपर्टीज के लिए, प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी ही, वो तो है ही, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वहां पर। अब आपको जो एश्योर्ड रिटर्न है उसमें जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला एसेंस है वो मिसिंग है। तो बोला ये फाइनेंशियल डेट नहीं है। भाई साहब चले गए एनसीएलटी से। एनसीएलटी क्या किया, बोला एनसीएलटी जो बोल रहा है वो सही है, बोला गलत नहीं है। तो सर फिर ये केस लो क्यों आया, सुन लीजिए आगे। बोला जो बात बोल रहा है सही है कि फाइनेंशियल डेट डिपेंड्स ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सो इस केस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिटरमाइन हुआ है। बोला अब लेकिन आप इस चीज को देखो कि क्यों इसको फाइनेंशियल डेट माना जाए। बोला एक ग्राउंड पे, बोला पहला बात तो हम लोगों ने बुक्स देखा, बुक्स में ये देखा कि एश्योर्ड रिटर्न आर शोन एज अ कमिटमेंट चार्जेस एंड लिखा हुआ वो एट पार विद द इंटरेस्ट ऑन लोन्स और अंडर द हेडिंग फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ दैट कंपनी। दैट मींस दैट कंपनी इज रिकॉग्नाइजिंग दैट एज अ कमिटमेंट चार्ज कि मेरे को देना था, फुलफिल करना था। और अगला कंपनी जब अपने बुक्स में ये रिकॉग्नाइज कर रहा है और अंडर द हेडिंग फाइनेंशियल कॉस्ट, तो हाउ कैन यू से इट इज नॉट अ फाइनेंशियल डेट। एंड देयरफॉर द एनसीएलटी कंक्लूडेड दैट अमाउंट इन्वेस्टेड इज नॉट अ सेल ट्रांजैक्शन, रादर इट वुड कम अंडर अ फाइनेंशियल डेफिनेशन डेट। मतलब आप समझे शॉर्ट में कि जो बार बार कंपनी का व्यू था एमआर इंफ्रास्ट्रक्चर का कि नहीं नहीं ये जो रिटर्न फिटन का मीन वाइल बोले हैं ये फाइनेंशियल डेट नहीं होता है। कई लोग गुमराह मत होइएगा प्लीज, क्योंकि अभी लोग कई लोग सोच रहे हैं कि सर रियल एस्टेट वाले लोग तो ऐसे भी आजकल इसमें आ जाते हैं, लेकिन ये केस है आपके एश्योर्ड रिटर्न पे। ये केस है, बोला कि जब आपका परचेज प्रॉपर्टी का केस मींस ट्रांजैक्शन हुआ था तो इट इज अ मियर सेल ट्रांजैक्शन ओनली। और एनसीएलटी ने बोला इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी फाइनेंशियल डेट नहीं है। बट एनसीएलटी ने डिफरेंट व्यू लिया, बोला जब आपने एश्योर्ड रिटर्न का कमिटमेंट दिया है और एक कमिटमेंट चार्ज हो गया ये आपका, जो आपने अपने बुक्स में दिखाया इंटरेस्ट ऑन लोन, आप उनको पे करोगे, दैट मींस इट्स एन ऑब्लिगेटरी, यू आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू रीपे इट बैक। हाउ कैन यू डिनाई कि इट इज नॉट अ फाइनेंशियल डेट, सो इट हैज टू बी ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल डेट। सो अब आप समझ जाइए जो विन विन केस हो गया, जो प्रॉपर्टीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं, इट इज अ विन विन फॉर देम। एंड सेम वाज द वर्डिक्ट हेल्ड इन द अनिल महिंद्रो केस। अगर ये भी आ जाए तो आप सेम लिखेगा अनिल महिंद्रो वर्सेस अर्थ आइकॉनिक, राइट। तो अब हम लोग समझ गए सर, अब हम लोग आराम से लिख लेंगे सर, वी अंडरस्टूड। नाउ देयर आर सम केसेस रिलेटिंग टू द पावर। This is a very landmark judgment which we are going to discuss. The committee of creditors of SR Steel Limited, SR Steel Limited and सतीश कुमार गुप्ता, बहुत ही बढ़िया लैंडमार्क जजमेंट है। एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग पूरे एकदम इसको ध्यान से सुनिएगा, एकदम मतलब जो भाषण हम देंगे वो अच्छे से सुनिएगा। ये हम तो भाषण ही देंगे। हुआ क्या देखिए, एसआर ने केस फाइल किया, एडमिट भी हो गया एनसीएलटी अहमदाबाद बेंच में। उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान दिया, आप लोग को पता है एसआर स्टील के लिए आर्सेलर मित्तल ने, एंड जो कि अप्रूव भी हो गया सीओसी से। बट सीओसी ने एक बात बोला जो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर होंगे
अगर उनका एक्सपोजर अबव 1 लाख है, ठीक है ना, वुड फोरगो दी अबव एंटायर अमाउंट, मतलब उनको नहीं मिलना है। ऑपरेशनल क्रेडिटर बोला फाइनेंशियल को तो मिलेगा ही, उसी के लिए तो होता है रेवोल्यूशन प्लान। एनसीएलटी ने अप्रूव किया आर्सेलरमित्तल का ओरिजिनल प्लान, लेकिन उसने एक राइडर डाल दिया, बोला सीओसी जो है वो 15% जो अमाउंट रिकवर करेगा फ्रॉम द प्रॉफिट, ये जो सीआरपी में होगा, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी पे करे। मतलब एनसीएलटी कंडीशन लगा दिया पेमेंट का। मैटर गया एनसीएलटी में कि भैया ये क्या कंडीशन लगा दिया, प्लान या तो अप्रूव करिए या रिजेक्ट करिए, ये सब कंडीशन क्या है। एनसीएलटी बोला सुनो, बोला हम भी रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर रहा है, बट बोला एक काम करो, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना प्रोसीड्स को, उसको इस वे में करना कि आपका फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर दोनों जस्टिफाइड पोजीशन में रहे। बोला फिर आप लोग कंडीशन लगा दिए, राइट। बोला एनसीएलटी बोला सुनिए कंडीशन नहीं है, बोला हमारा मैनर इतना ही है कि यू शुडंट डिफरेंशिएट बिटवीन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर। बोला आप लोग को भेदभाव नीति नहीं करना चाहिए। आप लोग को भी सुन के अच्छा लग रहा होगा कि एनसीएलटी सर बहुत सही बोला, भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलिए मैटर चला गया आगे जाके सुप्रीम कोर्ट तक, राइट। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स गुस्सा हो गए, बोले एक काम करो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो। सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या बोला वो ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट बोला सबसे पहले, बोला while we talk about this insolvency process, all the approval rights, आप अगर गौर से सुनिए, रेजोल्यूशन प्लान, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वेरिएशन इन द प्लान, एवरीथिंग इज विद द सीओसी, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। बोला द सीओसी शुड अप्लाई द कमर्शियल विजडम एंड देयर कमर्शियल विजडम इज सुप्रीम, मतलब उन्हीं का कमर्शियल विजडम सुप्रीम माना जाएगा। बोला अगर वो सोच रहे ऐसे करना है वैसे करना है, वो सोचे, और क्योंकि वो लोग ही बोला कैपेबल है, उन लोग का राइट्स है, दे आर सपोज टू अप्लाई देयर कमर्शियल विजडम, सो हाउ वी कैन इंटरफेयर। तो बोला दे शुड कंसीडर सीओसी इज द डिसीजन मेकर। बहुत बड़ा जजमेंट था सीओसी के फेवर में कि सीओसी इज द डिसीजन मेकर, राइट। डिसीजन मेकर कौन हुआ, सीओसी। सेकेंड उसने बोला, और सीओसी जब भी प्लान करेगा, बोला वो फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी देख के ही करेगा। तो बोला जब वो देख के करेगा, तो थर्ड उसने स्टेटमेंट दिया, बोला एनसीएलटी एंड एनसीएलटी हैज अ लिमिटेड जुडिशियल पावर। क्या बोला, बोला एनसीएलटी और एनसीएलटी हैज अ लिमिटेड जुडिशियल पावर। बोला क्यों सर लिमिटेड जुडिशियल पावर है, बोला दे अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन ट्रेसपास द कमर्शियल डिसीजन। बोला जो सीओसी डिसाइड किया है, बोला आप उसमें घुस के ये 10-15 कर दो, ये 15% कर दो, ये उसका ध्यान रखो, उसका ध्यान रखो। बोला अल्टीमेटली डिस्क्रिशन व्हाट टू पे एंड हाउ मच टू पे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से। अल्टीमेटली द डिसीजन ऑफ व्हाट टू पे एंड हाउ मच टू पे इज or lying with the COC only. The COC should decide what exactly to be paid. So जब हम बार बार बोले थे ना शुरू में, जब दिखा रहे थे कि दो कोड क्लैश हो रहा है, दो एक्ट क्लैश हो रहा है, तो आईबीसी जिंदाबाद। अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों अगर क्लैश हो रहे हैं, मतलब इंटरनल पावर्स वगैरह क्लैश हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे सीओसी जिंदाबाद, राइट। सो दैट पावर इज विद द सीओसी। इसी में एक और दो वर्डिक्ट और आए, मतलब साथ साथ ही बहुत सारे हैं, तो मतलब मैं आपको बता दिया सीओसी इज द अल्टीमेट डिसीजन मेकर। तो कभी कुछ एक्ट में आया कि सीओसी डिसाइडेड दिस, सीओसी डिसाइडेड टू सेटल द प्लान, सीओसी डिसाइडेड टू वेरी द प्लान। तो आप लिखिएगा, इस कोड का रेफरेंस दीजिएगा इस जजमेंट का, एसआर स्टील का, कि सीओसी इज एक्टिंग, सीओसी इज सपोज टू एक्ट लाइक अ commercial, means apply fully commercial wisdom and is supposed to act like a decision maker in the entire IBC process. इसके साथ और दो रेलिवेंट इसी में बात बोल दी सुप्रीम कोर्ट ने चलते चलते। बोले एक तो जो आप फाइनेंशियल क्रेडिटर और ये ऑपरेशनल क्रेडिटर में डिफरेंस बोल रहे हो कि दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, बोला ये नहीं है। बोला देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विटेबल। बोला यू कांट रीड बोथ। बोला जो आप आर्टिकल 14 को लेके बार बार ऐसे बोलते हो कि इक्विटी मतलब फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वल आप डिनाई हो जाएगा, दोनों क्रेडिटर में भेदभाव हो गया। बोला कोई भेदभाव नहीं है। बोला वंस द प्रोसेस इज डिटरमाइंड एंड देयर इज अ इक्विटेबल ट्रीटमेंट, मींस देयर इज अ ट्रीटमेंट एट पार
आप अगर उसी क्लास में जाके फर्दर मतभेद करो तो देयर इज अ प्रॉब्लम. बट देन if you are differentiating on the ground of equitability, then there is a no violation of the article 14, or there is no violation of the fundamental rights as enshrined under the article 14 of the constitution of India. ये इसका थर्ड बात. और लास्ट बात, एक और बात बोला इसी में, बोला जो 330 डेज को लेके आप जो चीख रहे हो, क्योंकि बोला आप बोल रहे हो 330 डेज से डिले हो गया क्योंकि मैटर चलते चलते तारीख पे तारीख मैटर बहुत लंबा चल गया. तो बोला सर इतना मैटर चलने के बाद तो 330 डेज ओवर हो गया, तो ये तो सर फिर आईबीसी कोड का पर्पस ही डिफीट कर दिया, अमेंडमेंट एक्ट जो आया उसको भी सर डिफीट कर दिया. बोला नहीं, बोला अगर सुनिए लिटिगेशंस की वजह से इफ देयर इज अ डिले देन देयर इज अ ऑलवेज, बोला दिस 330 डेज डिले नो डाउट, बोले इट इज अ जनरल रूल बट देयर कैन बी एक्सेप्शनल रूल टू इट. ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. द 330 days time period is a general rule that it has to be followed, but there can be exceptional rule in some circumstances where the adjudicating authorities justify and duly recognize and note it कि ये डिले इस वजह से हुआ, राइट. सो ये 4-5 बातें हुई एसआर स्टील में. पहला, सीओसी इज अ किंग मेकर, एनसीएलटी हैज अ लिमिटेड जुडिशियल पावर, no differentiation between creditors, and lastly the 330 days is a general rule and there can be exceptional rule, right. So ये verdict आया एसआर स्टील में. Next comes Swiss Ribbons Private Limited versus Union of India. ये भी इंटरेस्टिंग है. इस केस में क्या हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन. वो डिफरेंशिएशन को लेकर बात चला. बोला स्विस रिबन ने भी क्या बोला, बोला हमारे यहां पर डिफरेंशिएशन हो रहा है किसमें, बोला ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में. बोला दिस डिफरेंशिएशन इज देयर एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंशिएशन देयर इज अ वायलेशन ऑफ द कोड, राइट. देयर इज अ वायलेशन ऑफ द कोड एंड अकॉर्डिंगली द आरपी और द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स should decide considering the ongoing violation. However, the decision was something different in this landmark judgment, upholding the real intent or the real enactment of the code. उन्होंने पहला बात बोला, बोला एक बात और समझ लो. पहला बात, फाइनेंशियल ऑपरेटर क्रेडिटर्स एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है. दे आर क्लियरली डिफरेंशिएटेड, राइट. एंड देयर इज अ इनएंटेंजिबल डिफरेंशियल बिटवीन द टू. और जो दोनों में डिफरेंस है वो दोनों में पैरामीटर की वजह से है. सो दैट इज नॉट एट ऑल इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14. वही जो मैं अभी बात बताया, जो एसआर स्टील ने बताया, सेम टू द सेम पावर. ये कि दैट इट इज क्लियर अगेन द कोर्ट हैज क्लैरिफाइड कि दैट दिस डिफरेंशिएशन इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14. सो फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशन क्रेडिटर में डिफरेंशिएशन है वो रहेगा. They are clearly differentiated from each other, and there is a difference between, again I am repeating, equality and the equitable treatment, right. दूसरा उसने clearly बोला, see everywhere here in this code they determined कि COC ने बोला है. बोला COC बोला होगा, but then COC do not have the last say on everything. अभी आप बोलोगे कि सर आप पता है COC is a king maker. बोला king maker तो है, but then they do not have the last say. बोला कुछ मैटर, से फॉर एग्जांपल उसने 1660 को रेफर किया. क्यों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग फटाफट लिख लो. आपको पता होगा कि लॉ में अभी इनेक्टमेंट मींस अमेंडमेंट हो चुका है कोड में. उसमें यह है कि जब तक आपका सीओसी से अप्रूव ना हो प्लान, तब तक आप विड्रॉ कर सकते हो एप्लीकेशन को, राइट. सिमिलरली कोई सेटलमेंट हो तो सेटलमेंट भी करवा सकते हो आप पहले ही, राइट. है ना ऐसा बात कि सेटलमेंट अगर सपोज करो मैटर जा रहा है मेरा सीओसी में, मतलब मैटर आईबीसी में आ गया, सीओसी अपॉइंट हो गया, बट हम लोग आपस में बैठ के सेटलमेंट कर लिए, तो सेटलमेंट हो गया, राइट. और विड्रॉ का राइट तो है ही हमारे पास बिफोर सीओसी प्रूफ. तो बोला अगर सपोज करिए सीओसी कोई सेटलमेंट करे, हम लोग जैसे कोई सेटलमेंट किया, उसको सीओसी रिजेक्ट कर दिया, कर सकता है. तो कोर्ट बोला नो, दे कांट रिजेक्ट. बोला इतना भी ज्यादा किंग मेकर नहीं कि हम लोग से भी ऊपर सोचने लग जाए. बोला अगर सेटलमेंट हो गया है और सेटलमेंट सीओसी रिजेक्ट कर देता है कोई, तो बोला अग्रीव्ड पार्टी मींस जिन लोग जो खुश नहीं है,
वो लोग आके एनसीएलटी को बोलो, एनसीएलटी नहीं तो एनसीएलटी को बोलो, और ना फिर ये हमारे पास चले आना। बोला इतना ज्यादा भी दे कैन नॉट यूज देयर लास्ट से। बोला कोई सेटलमेंट हुआ है, कोई रिजेक्ट होता है, सीओसी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, कम टू अस, दे कांट हैव द लास्ट से ऑन दिस, राइट? एंड देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू, मींस अंडर द लॉ they do not consider the differentiation between the financial and operational creditor as a violation of article 14, right? So that they are clearly differentiated from each other, means without any violation of this article 14. And lastly they hold कि आरपी जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है उसका फंक्शन है ओवरसी करना फंक्शन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को एंड एडजुडिकेंट अथॉरिटी को। दे आर सपोज टू एक्ट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? They are supposed to facilitate the resolution process. So these are the key takeaway of this judgment, right? श्री रिबन का तो अब समझ में रहेगा। सर पहला तो वही जैसा स्टील जैसा कि फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर में जो डिफरेंस है उसको आप आर्टिकल का वायलेशन नहीं बोल सकते, सेम पहला वाला। सेकेंड उसने थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट बोला सीओसी किंग मेकर है बट सब चीज में उसका लास्ट से नहीं हो सकता। लाइक अगर कोई सेटलमेंट वगैरह रिजेक्ट हो गया हो तो कम टू अस, सीओसी उसको डिनाई नहीं कर सकता। सपोज करिए आपने सेटलमेंट किया, सीओसी को बोले हम लोग का सेटलमेंट हो गया है, सीओसी रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। कम टू द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट का पहला प्रिंसिपल ही क्या है? सेटलमेंट करवाना। तो कैसे डिनाई कर सकता सीओसी, राइट? थर्ड बोला आरपी हैज अ फैसिलिटेटिंग पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड दे शुड एक्सरसाइज द सेम। सो दीज आर द की टेक अवे विच केम आउट इन दिस केस लॉ। अगेन अपहोल्डिंग द judgment or again upholding the real enactment of the code. Next is the India Bulls Housing Finance Limited and Sri Ram Urban Infrastructure Limited. ये case law related है when there is already proceeding initiated. This is a very interesting case law. क्या ना कि जब अभी आप लोग क्या ना आज 2-3 व्यू सुनते हो, जजमेंट में यही होता है, हमेशा याद रखिएगा। एक जजमेंट कुछ बोलता है, दूसरा जजमेंट कुछ, तो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर होगा क्या। जैसे अभी मैं शुरू में जब इनिशियली वी स्टार्टेड आई सेड कोड जिंदाबाद, कोड ही प्रिवेल करेगा, बट कोड प्रिवेल करेगा टू द सर्टेन एक्सटेंट। लॉ में हमेशा याद रखिएगा फुल स्टॉप नहीं यूज होता है, दैट मींस ओपन एंडेड सेंटेंस है, उसके बाद भी कुछ बैठेगा। तो वहां पर आप सुने कि कोड जिंदाबाद है, लेकिन कोड जिंदाबाद टू द सर्टेन एक्सटेंट। बोला कैसे? बोला जब ये मैटर का केस आया ना इंडिया बुल्स का, बोला हुआ क्या, मुंबई बेंच में ऑर्डर पास हुआ कि एप्लीकेशन नॉट मेंटेनेबल, मींस एप्लीकेशन को एडमिट नहीं किया। बोला क्यों? बोला एनसीएलटी बेंच ने क्लियरली बोला कि भाई सिंस देयर इज अ ऑलरेडी लिक्विडेशन ऑर्डर फ्रॉम द हाई कोर्ट, बोला लिक्विडेशन हाई कोर्ट में स्टार्ट हो चुका है, तो बोला जिसका स्टार्ट हो गया उसका कैसे करें? तो बोला कोई बात नहीं, दुखी हो गया एनसीएलटी से, चले गए एनसीएलटी में, एनसीएलटी ने केस का रेफर कर दिया, उसने एक और केस रेफर कर दिया, कौन सा? फॉरेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एडलवेज का, और बोला जब ऑलरेडी लिक्विडेशन में जा चुके हो, वाइंडिंग अप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका भाई हाई कोर्ट, तो बोला आप कैसे यहां आ सकते हो? अब सुनिए, अब आप लोग सुन के सरप्राइज हो जाएंगे, बोलेंगे सर इसके मतलब तो कोर्ट जिंदाबाद नहीं है। गलत, कोर्ट अभी भी जिंदाबाद है। उसने क्या बोला वो सुनिए, एनसीएलटी का जजमेंट ने, उसने बोला नो डाउट कोर्ट विल हैव ऑलवेज अ माइलेज, बट व्हाट यू आर डूइंग, बोला आप सेकेंड स्टेज पे जा चुके हो। बोला हम सिर्फ वेंटिलेटर पे रखने का बात करते हैं, उसके बाद वेंटिलेटर हटाने का। बोला आप हटा चुके हो वेंटिलेटर, अब हम कैसे लगाएं? बोला आईबीसी कोड का नियम क्या है? पहले रिहैबिलिटेट करना, उसके बाद उसको अगर नहीं हो रिहैबिलिटेशन तो उसको डिसोल्यूट करना। तो बोला हम तो रिहैबिलिटेट करना चाह रहे थे तो आप पहले आते। बोला अब तो आप सेकेंड स्टेज में जा चुके हो, दैट मीन्स यू हैव एंटर्ड इनटू सेकेंड फेज, आप लिक्विडेशन स्टार्ट कर चुके हो, तो सेकेंड में जाके फर्स्ट कैसे आ सकते हो? कभी पढ़ाई उल्टा चालू कर सकते हैं हम लोग, कभी पढ़ लिए फिर बाद में वी विल डू द लोअर केजी एंड अपर केजी, इट कांट बी। बोला यू कैन गो इन अ सीक्वेंस, राइट? तो बोला जब आपने सेकेंड स्टेज स्टार्ट कर दिया तो वी हैव नो रोल इन रीस्टोरिंग टू द फर्स्ट स्टेज। तो बोला आपकी एप्लीकेशन मेंटेन नहीं होगी, तो आप लोग को जानबूझ के दिया जाएगा, बताया जाएगा कि ऑलरेडी एक केस है, लिक्विडेशन स्टार्ट हो चुका है, बट द कंपनी वांट्स टू इन्फोर्स इट अंडर द आईबीसी, सिंस आईबीसी इज अ कंप्लीट कोड इटसेल्फ, सिंस आईबीसी हैज अ ओवरऑलिंग पावर, सिंस आईबीसी हैज अ सेक्शन 238,
ये सब लिख लिख के नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज आपको थोड़ा और गुमराह कर देगा। आपको लगेगा नहीं नहीं कोड ही जिंदाबाद है, कोड ही प्रिवेल करेगा। नहीं, बहकाव में मत भइएगा, थोड़े कूल होकर रिप्लाई करिएगा, नो नो इट्स ऑलरेडी एंटर्ड इनटू सेकंड स्टेज एंड देयर इज अ लैंडमार्क जजमेंट। नहीं याद रहे इंडियाबुल्स नाम, तो लैंडमार्क जजमेंट वेयर इट वाज हेल्ड that once it is in a second stage, you cannot come back to the first stage. Right? So these are the some of the case laws which we have discussed exactly from the your supplementary mat of the institute. इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2020 का जो सप्लीमेंट्री मैट दिया, हमने पूरा का पूरा वहीं से डिस्कस किया। We will come with the some more videos which are already there, कुछ नए और होंगे। So stay tuned to those classes and the video, right? Thank you so much.